So very good morning to all of you. This practical hour will be converted into the practical assignment hour, and also we solve the example by the pipe network analysis by the Hardy-Cross method. Okay. So once again, now 11 past 18, 8 minutes already passed to start our lecture. Still the only few people are joining, no issue. Learning is not uh, come from the compulsion. So we will go through the theory and then we will start the exam. Okay. So this is the pipe network. If you see the network water supply system in our municipality, the various pipes are connected in the closed loop. In the in the closed loop. In the closed loop. Okay. So few students now joining. So the point. So always you should display your proper name during the lecture hours. Otherwise, I will not admit or allow you in the lecture. Okay. So proper name and proper display photograph should be there. Then only I will enter you into the classroom because these calls are recorded. Okay. Also mute yourself, and if you I will ask if you have any doubt, then only you can unmute and ask the question. So follow the ethics, and it is very strictly in our Maulana Mukhtar Abu Najib Technical Campus that you should follow the ethics. Otherwise, you will not be entertained. Okay. So next time, if the persons they want to join the lecture, they should be with proper name and proper DP display. Okay. You can open your camera as I am taking a lecture, so I want to see your faces also. And once the lecture start, then please avoid disturbing. Okay. So this theory we will see the pipe network. Generally, I am discussing that ये जो म्यूनसिपलिटी का वाटर सप्लाई सिस्टम है या कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई सिस्टम है जो घरों को हम लोग पानी पहुंचाते हैं so generally they are in a closed loop. Generally they are in a closed loop. So there are certain loops are there and service lines are there. So if you see that AB, BD is AB, BD, AD, okay, ED, AE, DC, BC, all these are nothing but the service line. So here you can see from A certain discharge is coming, from B also certain discharge is coming, and so we will say if that is input to the system. So Q in terms of input at A and B in this network, what we are seeing. Also, you can see that output from network from network it is you can see the C, E, and D. Okay, so if you say that input to the system is 100 cubic meter, their output should be also the 100. Okay, so that is our discharge. So there is units, and you know that how to find out the units. Okay, so always try to uh, understand the units of the system. Okay, so here we will write down units. It may be cubic per second, it may be cubic or cubic meter per second. But here, this pipe network, you can understand that input to the system must be equal to output to the system. So I will just water supply to the town from a waterman is always by a closed system of pipe network. The main gets bifurcated by branches
and the branches get bifurcated by service lines from which customer gets connection. So from service line, customer they gets the connection. There's a pipe network system supplying water in a flow in a closed loop, and several loops make pipe network. So several loops they make a pipe network. In this figure you can see the three loops are shown. है ना? If you see the A, B, E, this is one loop. Okay, this is one loop. You can see ADB, this is another loop. Okay, second loop, and DDC, this is again another loop. So how many loops are there in this network? The whole this figure is called as the pipe network. Okay, and pipe network having a different loop, one, two, three, and then service lines. Service lines may be AB, AD, AE, ED, BD, and DC, DC. These are the service lines. And input to the system at A and B, and output to the system from E, D and C. और सिस्टम की जगह अगर हम बोल सकते हैं कि पाइप नेटवर्क को इनपुट कहाँ से ए और बी जंक्शन से है, तो ए बी सी डी ई ए कैपिटल अल्फाबेट में जो शो कर रहा है ये क्या है, जंक्शन है, और जो रोमन अदद में हमारा शो कर रहा है ये फिगर में वो क्या है, वो है हमारा लूप. क्या है, लूप है. आई थिंक सो माई साउंड इज क्लियर, देयर इज नो डिस्टर्बेंस. विल प्रोसीड. तो वाटर सप्लाई जनरली क्लोज लूप में होता है ना, और लूप क्या है, 1 2 3 जैसे मैंने समझाया, और ए बी सी डी ई ये है जंक्शन पॉइंट. ओके, नाउ the trial and error method suggested by the Hardy Cross, and we can understand how to solve this pipe network problem using the Hardy Cross method. तो हम थोड़ा सा उसके जो assumptions हैं या steps है हम लोग फास्टली देखेंगे, and then we will solve and one example, वो एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा किस तरह एरर निकलते हैं, किस तरह डिस्चार्ज हर पाइप में मालूम करते हैं. ओके, तो जनरली पाइप से कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है ईच फ्यूल सर्विस लाइंस अगर बोल सकते हैं आप, तो हम लोग कौन से ट्रायल मेथड से मालूम करते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड. तो नेम ऑफ साइंटिस्ट हार्डी क्रॉस है, उसके नाम से ही ये मेथड असाइन किया गया है, या उसके नाम से ही डिनोट किया जाता है. So the pipe network problems are in general complicated and cannot be solved analytically. As such, method of successive approximations are utilized. One such method which commonly used is a Hardy-Cross method, named after its original investigator. The procedure for the solution of pipe uh, solution of the pipe network problem by Hardy-Cross method uh, is as follows. The first, मैंने आपको बताया कि इनपुट टू द इनफ्लो टू द सिस्टम और इनफ्लो टू द नेटवर्क should be equal to outflow. पहला assumption क्या है इसमें, there is no losses, or you can say that the inflow to the system is equal to outflow. Okay, तो अगर 100 यूनिट इनफ्लो है तो 100 यूनिट आउटफ्लो भी होना चाहिए, 100 यूनिट आउटफ्लो भी होना चाहिए. दूसरा क्या है, फ्रॉम द फिगर इन गिवन लूप HFC is equal to HFCC, यानी head loss in a clockwise direction is equal to head loss in counterclockwise direction. So HFC, that is head loss in clockwise direction. HFC is the HFCC is the head loss in the counterclockwise direction. As regards direction of flow is connected. It is with respect to a junction of loop. For example, in loop 1, take junction A, then the flow in pipe AD is clockwise and AE is and ED is the counterclockwise. तो अगर हम लोग अभी यहाँ पर अगर आप फिगर देखेंगे आप,
फिगर आप देखिए, अगर मैं कंसीडर करता हूँ लूप वन, आई विल कंसीडर दिस लूप वन, अगर मैं कंसीडर करता हूँ लूप वन को, लूप वन कंसीडर करता हूँ तो आप देखेंगे लूप वन में, लूप वन दिस इज द लूप वन। तो यहाँ पर ए ई या ए डी आप देखेंगे, इसका एरो इस तरफ है, तो यू कैन सी दिस फ्लो इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो what it says that HFC, any head loss in clockwise direction, is equal to HFCC, that head loss in the counterclockwise। अब यहाँ लूप वन में अगर मैं ए ही देखूंगा तो ये इस तरह फ्लो रहा है, यानी किस द काउंटर क्लॉकवाइज है। अगेन यहाँ पर ईडी अगर मैं लूंगा इस तरह फ्लो हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो काउंटर क्लॉकवाइज। So likewise, as per the loop, you can find out the clockwise and anti-clockwise direction, and that will show you the flow pattern, discharge pattern into the pipe network uh, uh, analysis or pipes. Okay. तो इट टेक जंक्शन, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया कि किस तरह काउंटर क्लॉकवाइज है, लूप के हिसाब से हमको देखना है ना। देन सिमिलरली अगर लूप टू हम लोग ने जंक्शन की, तो फ्लो इन बी डी, अगेन यू कैन सी हियर इन फिगर, बिकॉज डिस्क्रिप्शन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर अब यहाँ पर मैं फिगर आपका फिगर टू में लेता हूँ, फिगर टू में लेता हूँ, आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो आई विल कंसिडर नाउ द लूप टू, दिस इज द लूप टू। अब यहाँ पर मैं ए बी अगर लेता हूँ, ए बी इस डायरेक्शन में, लूप टू के हिसाब से ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं बी डी अगर लेता हूँ तो दिस इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर ए डी में लेता हूँ तो इसका डायरेक्शन देखिए चेंज हो जा रहा है लूप टू में। हालांकि ए डी का डायरेक्शन लूप वन में क्या था, क्लॉकवाइज था, यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज हो। सिमिलरली अगर आप लूप थ्री अगर लेते हैं, आई विल चेंज द तो पेन कलर, तो दिस लूप थ्री। अब यहाँ पर बी सी देखेंगे तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी डी अगर देखेंगे तो अगेन दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड डी सी अगर देखेंगे तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो you have to assign the sign, you have to assign the sign। Okay, now you know that how to assign a sign for the service lines, so I will skip that description because you understand। now the clockwise flow is considered positive। यहाँ पर देखिए ये साइन कन्वेंशन है, अगर इसको मैं बोलूँ कि दिस इज द साइन कन्वेंशन, convention to solve pipe network problem, pipe network problem, okay, problem using which method, using Hardy cross, using Hardy cross। so this you should remember। so what is the sign convention? Sign convention is nothing but when this is the clockwise direction if you consider, then that is positive, that is positive। okay, a counter clock or anti-clockwise flow is considered as negative, okay? so this you should remember while solving the pipe network problem। now we know that the head loss that is HF from the Darcy classification equation is FLV square upon 2G into L। okay, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस द in terms of discharge अगर मैं लिखूँ तो V is equal to Q upon A, V is equal to Q upon A। okay, so if I will put this value here, so A is again, you know, the pipe is circular pipe, so pi by 4
into v raised to power 2. अब यहाँ पर क्या है v स्क्वायर है, तो व्हाट इज द v स्क्वायर इज इक्वल टू q square upon a square. Okay. Now this all term, if I will equate with this k is kq square, so what will be FL 2GD a square kq square and 5 and 4. So it will be the value of k. You can say k is equal to FL 2GD a to the power 2 स्क्वायर. अगर मैं इसको यहाँ पर टर्म लेंगे तो व्हाट इज द के वैल्यू, के इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपन 2 g t raised to 5 into 5 by 4 square. So this will be the value of k. So you can find out the value of k. Or if you know the area also, you can find out the value of k. And then again the other assumption is that flow in each pipe of a given loop in Hardy-Cross method is arbitrarily assumed with the direction, and if assumed flow is correct, then HF should be equal to HFCC. So HF should be equal to HFCC. So this is another assumption by the Hardy-Cross method, or you can say the procedure. But if HF is not equal to HFCC, then assumed flow needs correction and given by, and then correction is to be given by delta Q. So delta Q should be equal to summation of KQ power of N divided by summation of Nk to N minus 1. ओके. तो जनरली अगर हम सेकंड ऑर्डर डिग्री अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ के टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन, दिस इज मोर एन के, तो यहाँ एन इज 2, तो 2k 2 raised to 2 - 1 क्यू. This is the equation if second order you get. अगर हायर ऑर्डर में आप जाते हैं तो that equation will be kq cube divided by 3kq square. समझ में आया? So likewise you can do the correction. Then position delta q means correction to be added. अगर if it is positive, then correction to be positive. This is a position is positive. It's positive, then correction should be added, and if it and added to clockwise flow, and negative means it should be deducted from the clockwise flow. अगर आपका फ्लो क्लॉकवाइज है तो डेल्टा क्यू क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव है डेल्टा क्यू तो ऐड करेंगे, और आपका फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज है तो इट शुड बी डिडक्टेड. तो डेल्टा क्यू क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इन काउंटर क्लॉकवाइज डिडक्टेड फ्रॉम क्लॉकवाइज फ्लो. ओके. तो अगर निगेटिव है तो डिडक्ट करेंगे क्लॉकवाइज फ्लो से, है ना. तो नेगेटिव डिडक्शन, नेगेटिव वैल्यू अगर है तो reduction for the clockwise flow. So what? So like this, the minus value will be okay. For common pipes between two loops, so for loop 1 delta q common pipe, delta q1 minus delta q2, and loop 2 delta q will be delta q2 minus delta q1. So likewise you can find out the corrections for loop 1, and you can find out the correction for the loop 1 and loop 2. So this is you have to apply in your Hardy-Cross method when you are going to solve. So this is the procedure. Okay, this is the procedure, and now we will solve how to solve. Now we will see the how to solve the pipe network problem using Hardy-Cross method.
Okay, hardy cross. So let's solve one example so that you come to know, and then I will give the assignment on this topic so that you should write down on the journal pages, and that will be attached with your file or manual, your file, FM file. Okay, as we will proceed for the experiment and assignment, you have to put in your file date wise submission. So one already our virtual lab practical is completed, and this in second this is the practical hours we are taking the uh, uh, theory class to complete the hard economics method analysis, pipe network analysis, so that you can do your practical assignment whatever I will give. So this is nothing but solving the two purpose, our theory class also, our practical class also. Okay, so you are getting up till now what I have said. So that is you have understand and very good. Okay, so this is what about the all about the hard process. Now we will solve the example. This example is given. Uh, so the simple example you can see. Example number one, which I will write down. This is example. Okay, I will change the color of pen so that it will be easily visible to you. I think so the red color will be good. For the pipe network shown in figure below, find the discharge in each pipe and show it is in a figure with proper direction sign. तो ये आपको पाइप नेटवर्क दिया गया है। तो पाइप नेटवर्क किस तरह दिया हुआ है, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है। कितने जंक्शन पॉइंट दिए हुए हैं? ओनली 4 जंक्शन पॉइंट्स आर गिवन। ओके, 4 जंक्शन पॉइंट है और वो जंक्शन पॉइंट है ए, आई विल राइट डाउन बी एंड सी एंड डी। These are the junction points. And the service lines I will show with the green color. Service line I will show with the green color. You can see the service line A to B. There is a flow. Okay. Then service line, which is A to B, and then service line B to C. Okay. Then service line is D to C. Okay. Here the K value is given. K value अगर नहीं दिया है तो आपको मालूम करना पड़ेगा, लेकिन K value अगर दिया है तो no need of calculating. So K value already given, but K is nothing but FL divided by 12 D raised to power 5. तो ये K value का मालूम करने का फॉर्मूला है ना। लेकिन हियर यहाँ पर एग्जांपल में K वैल्यू मालूम कर रहा है, यानी दिया हुआ है। अगर K वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको F दिया रहेगा, आपको लेंथ ऑफ पाइप दिया रहेगा, आपको डायमीटर ऑफ पाइप दिया रहेगा, और ये 3 वैल्यू से अगर आपको मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट द K। ओके, तो समझ में आया। और फिर उसके बाद एक लाइन, सर्विस लाइन हमारी एक आती है बी टू डी, विच इज कॉमन इन बोथ दो। ओके, अब यहाँ पर के की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली आपके एग्जांपल में इसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। ओके, वैल्यूज आई विल राइट डाउन। दिस discharge 30 unit, this is input, and the output is also 30 unit. Okay, output is also 30 units, and the K discharge in pipe I have suggested that A to B it is 15, A to D it is 15. Okay, then again B to C I will considering a discharge of 10, and here D to C we are considering discharge of 20.
and B to D I am considering discharge of pipe. Now the K value is also given. What is the K value for each pipe? It is given. So you know that this is the loop 1 and this is loop 2. Now again I will write down the K value. Okay? So K value अगर हम लिखते हैं तो this K value for each, it is K is equal to here for AB K is equal to 1, for BC K is equal to 2, for AD also K is equal to 2, for DC K is equal to 1, and for BD is also K is equal to 3. For BD K is equal to 3. So the K is nothing but the pipe coefficient. K is nothing but pipe coefficient. K is nothing but the pipe coefficient. And its value is nothing but depend on the friction factor, depend on the length, depend on the diameter. समझ में आ गया ये? अब आगे बढ़ते हैं किस तरह हमको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। टेबुलेटेड फॉर्म में अगर आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा और कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक, लेकिन अगर आप इसको क्या बोलते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिकल आवर्स में वी आर गोइंग डूइंग द जस्ट taking the attendance of this validation so that now we can claim that I am capable. So here now we will start solving the problem. So here you can see the divide inflow at A into this figure, and based on the figure this we are considering the this description. So this is description on this figure. Just you can consider A से डिस्चार्ज हुआ 30 यूनिट को, 30 यूनिट को हमने क्या किया 15-15 का इक्वल में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? तो डिस्चार्ज 15 + 15 30 हो गया। अब जंक्शन बी पे अगर हम आते हैं तो अगर अगेन यहाँ पर 15 है, 15 इनपुट है तो 15 आउटपुट भी चाहिए। तो 10 बी से सी जा रहा है और बी से डी जा रहा है 5, ये हमारा अजम्पशन है ना। लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। अब वापस से ए से डी जो जा रहे हैं 15 इनपुट है, लेकिन डी टू सी जो जा रहा है ये 5 इधर ऐड हो रहा है, ये 15 ऐड हो रहा है, कितना होगा 20। तो डी से सी जो जा रहा है 20 जा रहा है। अब बी से सी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और डी से सी सी जंक्शन में कितना आ रहा है 20 आ रहा है। 20 + 10 कितना हो गया 30। तो आउटपुट आपका 30 यूनिट हो गया। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो गया। तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन हियर, दैट इज द डिस्क्रिप्शन हियर। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो करता है एरो, है ना। और के इज नथिंग बट द पाइप कोएफिशिएंट, और पाइप कोएफिशिएंट ये एग्जांपल में दिया हुआ है। और अगर पाइप कोएफिशिएंट आपका नहीं दिया है तो यू कैन फाइंड आउट FL 12 टाइम्स ऑफ e⁵ okay 5 okay, this we can find. Now I will solve this example by using this table. So in tabulated form you can solve this. तो अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करना है, पहले आप कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर देता हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 and column number 7. So we need at least 7 columns to solve this example. So as we write down, so this is the column number 1 is for loop, then the pipe or service pipe you can say, then this K value is the pipe coefficient value,
Q is the discharge value, K Q square for second degree, and then 2KQ in the mode. There, all the sign should be to write the mode, all sign will be, and then last one to find out the delta Q value. So delta Q is equal to for second degree summation of KQ square divided by summation of 2KQ. This is nothing but I will write down. Okay. Now we will solve this example, है ना? कैसे सॉल्व करते हैं और इसको जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि आपका करेक्शन का जो फैक्टर है लेस देन 1 ना हो जाए, जब तक सॉल्व करते रहना है। और जितना ज़्यादा ट्रायल लेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रीसीजन रिजल्ट आएगा। तो आई विल कंसिडर दिस टेबल इज नथिंग बट ट्रायल नंबर 1, है ना? अभी हमारा ये फिगर आपको मालूम है, डिस्चार्ज ए बी सी बी डी एंड यहाँ से, तो ये ए बी सी डी, डिस्चार्ज फ्लो का डायरेक्शन हमको मालूम है, हमको के की वैल्यू मालूम है, ठीक है। नाउ 30 यूनिट यहाँ से आ रहा है, 30 यूनिट आपको 30 यूनिट यहाँ से बाहर जा रहा है। तो 1 बाय 1 हम लेते हैं। तो फर्स्ट आई विल कंसीडर द लूप 1, आई विल कंसीडर द लूप 1। लूप 1 में पहला मैं वो लूंगा, क्या बोलते हैं, पहला वाला पाइप लूंगा। पहला पाइप कौन सा है यहाँ पर, ये फिगर में देखिए, ए टू बी डिस्चार्ज कितना है, 15 है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पर लूप 1 से अगर मैं देखूंगा तो ए टू पी जो है ये कौन से डायरेक्शन में है, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर ए बी मैंने पहला पाइप लिया, के की वैल्यू वहाँ पर 1 दी थी, मैं यहाँ 1 लिख दिया। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 15 है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए मैं क्या लिया हूँ, ये क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पॉजिटिव। जो इसकी साइन रहेगी कॉलम नंबर 4 की, यहाँ पर वही साइन रहेगी कॉलम नंबर 5, और कॉलम नंबर 6 पे साइन से कुछ लेना नहीं, ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। कॉलम नंबर 6 की ऑल द वैल्यूज will be, all values will be positive, okay। So now we can solve। तो k q square, k वैल्यू 1 है, q square is 15 का स्क्वायर, 15 into 15 is plus 225। now 2 k की वैल्यू 1 है, 2 into k is 2, है ना? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 into k 1 into q is 15, तो 2 into 1 is 1 2, 2 into 15 is 30, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। अब लूप 1 में सेकंड पाइप हम देखते हैं, ये लूप 1 है हमारा, सेकंड पाइप अगर मैं देखता हूँ तो बी डी भी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, है ना? तो बी डी भी अगर हमारा यहाँ पर ये 5 का जो है ये इधर क्लॉकवाइज है, तो इट विल आल्सो पॉजिटिव, दैट वैल्यू आल्सो पॉजिटिव। आई विल राइट डाउन हियर द वैल्यू ऑफ के इन बीडी इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पॉजिटिव 5। तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर क्यू कितना है हमारा, 5 into 5 25, और के की वैल्यू 3, तो 5 into 5 25, 25 into 3 इट विल बी प्लस 75, ओके। अब यहाँ पर वापस से हम 2 into k is 3, 2 into k is 3 into discharge is how much, 5। So what will be the value here, 2 into 3 is 6, 6 into 5 is 30, so it is always again 30, okay। Now I will take the another pipe DA in loop 1। तो अभी सब लूप 1 ही चल रहा है, ये सब लूप 1 का ही चल रहा है। तो लूप 1 में वापस से मैं आता हूँ, तो आप देखिए DA, लूप 1 में DA क्या है, A to D,
So this flow is, you can see it is anti-clockwise और counter clockwise. काउंटर क्लॉकवाइज के लिए क्या बोला था, वैल्यू निगेटिव लेना है। के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर वापस से मैं लिखूंगा के की वैल्यू जो है टेबल में, के की वैल्यू यहाँ पर 2 है, काउंटर क्लॉकवाइज है यानी यहाँ पर साइन निगेटिव आएगी। डिस्चार्ज कितना है, यहाँ पर 15 है। अगेन यहाँ पर के टू क्यू, जो साइन आपकी ये कॉलम की रहेगी वो साइन यहाँ पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 2 इंटू के की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू क्यू की वैल्यू 15 है, 4 इंटू 15 इज नथिंग बट 60। तो समेशन ऑफ 2 के क्यू इज 16। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 ना। 15 का स्क्वायर अगर हम ले लें इट इज 225, लेकिन यहाँ के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो के 2 इंटू 225, तो 2 इंटू 225 ये कितना हो गया, 450। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -450। अब हमारा फार्मूला क्या है, डेल्टा Q1 अगर हमको मालूम करना है तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू माइनस अपॉन, अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस साइन पहला रहेगा। सर -450 कैसे होगा? ये जो कॉलम नंबर 4 का माइनस है वो एज इट इज माइनस यहाँ पर साइन लेना है। वो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, वो मैथ से नहीं लगाना है यहाँ पर। समझ में आया? हेलो। ओके सर। हाँ, जो साइन आपकी कॉलम नंबर 4 की रहेगी वही साइन यहाँ पहले पुट कर देना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा दिमाग नहीं लगाना है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, डोंट डू दैट। समझ में आया? और यहाँ पर भी जब करेक्शन फैक्टर मालूम करेंगे तो ये माइनस साइन पहले लगाएंगे। ओके, उसके बाद ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम नंबर 4 का साइन है वही कॉलम नंबर 5 का साइन रहेगा। डोंट यूज योर ब्रेन हियर। ओके, इट इज द मेथड सजेस्टेड बाय हार्डी क्रॉस, so we have to follow, you are solving the by हार्डी क्रॉस। नाउ यहाँ पर हमको समेशन ऑफ के क्यू मालूम करना है और समेशन ऑफ 2 के क्यू मालूम करना है। तो अब ये देखिए 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 60 इज 120, तो ये समेशन आ गया मेरा 2 के क्यू का 120। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 225 प्लस 75 कितना होता है, ये दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये शायद हो जाता है 300, तो ये प्लस 300 है और ये माइनस 445 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 150, क्योंकि बड़ी टर्म माइनस के साथ है। तो -450 प्लस 30 इट इज नथिंग बट -150। समझ में आया? तो हमको यहाँ पर लिखना है -150। अब नाउ वी नो द वैल्यूज, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। तो के क्यू स्क्वायर, समेशन ऑफ के क्यू स्क्वायर हमारा कितना आया, -150। ओके, एंड समेशन ऑफ 2 के क्यू कितना है, 120। लाइकवाइज आप इसको डिवाइड कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 1.25 प्लस 1। तो ये करेक्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा पाइप्स में। ओके, समझ में आया क्या सबको? तो लाइकवाइज वे टू अप्लाई द करेक्शन। अब यहाँ पर अब मैं लूंगा लूप 2। लूप 1 का काम मेरा क्लास हो गया, अब मेरे को लूप 2 ले रहा है। लूप 2 में हमारे 3 पाइप है। वहां पर कौन कौन से पाइप है, यहाँ पर देखिए। पहला हम देखते हैं लूप 2, ये लूप 2 है। पहला अगर हम देखते हैं बीडी अगर हम पहला ले तो ये वापस से देखिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स द वैल्यू शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बीडी इट इज एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर के फैक्टर 3 है, एंटी क्लॉकवाइज -5। ओके, अब यहाँ पर जो माइनस साइन है यहाँ माइनस लिख देना है। ओके, क्यू स्क्वायर
5 into 5 25, 25 into 3 75, so it is minus 70. 2k cube, 2 into k is 3 है ना, 2 into k is 3, 2 into 3 into 5, तो ये कितना हो गया 30, तो यहाँ पर ये 30 है। समझ में आया? अगेन लूप 2, आई विल टेक द BC। अब BC हमारा क्या है, मेरे ख्याल से k की वैल्यू वहां पर 2 है। यहाँ पर देखिए मैं आ गया लूप 2, ये लूप 2 लिया। BC कितना है यहाँ पर, BC की k की वैल्यू 2 है और डिस्चार्ज कितना है 10 है, और ये क्लॉकवाइज है। आप देखिए BC लूप 2 से क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BC k की वैल्यू 2 है, तो पॉजिटिव 10 है, ओके 10 है, पॉजिटिव 10। तो ये अगर के क्यू स्क्वायर हम लोग मालूम करें यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू के की वैल्यू 2, 100 इंटू 2 है 200, तो इट इज प्लस 200। नाउ दिस इज द 2k क्यूब, 2 इंटू के इज 2 4, क्यू की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 10 इज 40, so this is always plus 40. Now we will say take the another pipe in the loop 2, तो अगर another pipe in the loop 2 is the CD, तो यहाँ पर DC आप देखिए, CD या DC आप जो भी बोले, तो again you see that this is the counter clockwise है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो अगेन द टर्म हियर इट विल बी, द क्यू टर्म विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। के की वैल्यू 1 दी है तो -20 हो जाएगा, ओके। ये माइनस है बोले तो ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया। अब 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू के की वैल्यू 1, 400 इंटू 1 इज 400, -400, ओके। और अगेन आप देखेंगे 2k क्यू, 2k क्यू, 2 इंटू k इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, q इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको समेशन करना पड़ेगा है ना, क्योंकि मुझको करेक्शन फैक्टर मालूम करना है। तो अब मैं मालूम करता हूँ, तो अब देखिए, तो ये क्या हो गया 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 40 इज 110, value is always positive. Now this here 400 ये माइनस है, 75 माइनस है, तो ये -475 हो गया, ओके। अब यहाँ प्लस 200 है, लेकिन बड़ा टर्म क्या है माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 7 में से गया 7 एंड 4 में से 2 गया 2, तो -275 इज द समेशन ऑफ दिस टर्म। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये समेशन ऑफ लूप 2 हो गया। नाउ द करेक्शन फैक्टर फॉर लूप 2, लूप 2 रोमन अदद में लिख रहा हूँ मैं, लूप 2 है ना, इज इक्वल टू -275, ऑलवेज द टर्म विल स्टार्ट विद द -275 डिवाइड बाय दिस प्लस 110। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर में, आप भी सोल्व कीजिए, तो 275 डिवाइडेड बाय 110, ये आ रहा है 2.7, ये आ रहा है 2.5 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 2.5 इज द डेल्टा Q2, करेक्शन फॉर द। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा BD जो है कॉमन पाइप है, BD कॉमन पाइप है, तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा Q लिखूँ, डेल्टा Q फॉर कॉमन पाइप BD इज इक्वल टू 1.25, ये लूप 1 के लिए, फॉर लूप 1 1.25 माइनस 2.5, तो ये क्या जाएगा -1.25। और लूप 2 के लिए अगर मैं लिखूं,
लूप 2 के लिए डेल्टा क्यू फॉर लूप 2 फॉर कॉमन पाइप BD, same BD is there for common pipe BD. So it will be 2.5 minus 1.25. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1.25 इधर है, 2.5 पॉजिटिव आया तो 2.5 माइनस 1.25, तो इट इज पॉजिटिव 1.2. समझ में आया? तो दैट इज द लूप 1 एंड लूप 2 एरो. दैट इज द लूप 1 एंड लूप 2 एरो. Now the correction we have to apply with our figure. So again I will draw the figure neatly. This is the inflow, this is the junction point, okay, this is the outflow. Inflow and outflow are 30 units. Okay, अब हम करेक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो डिस्चार्ज की वैल्यू सबकी चेंज हो जाएगा. I will write down first the junction points A, B, C, D. Okay, then you know that this one is the loop 1, one is the loop 2, जैसे कि हम लोग ने नाम दिया. And this arrow shows the flow. अब यहाँ पर डिस्चार्ज में हम करेक्शन अप्लाई करेंगे, है ना. अब यहाँ पर आप देखिए करेक्शन फॉर लूप 1 क्या आया है आपका, प्लस 1.25. तो यहाँ पर अगर मैं डिस्चार्ज 30 है तो ए बी में, ए बी अगर मेरा ये ए बी है ये प्लस 1.25 अगर मैं करता हूँ तो 15 प्लस यहाँ पर ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का इट इज इक्वल टू 15 प्लस 1.25, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा 16.25. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा डिस्चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर 16.25. टोटल इनपुट कितना है सिस्टम में, 30 है. तो अब इधर क्या हो जाएगा, उधर प्लस हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर माइनस होगा ना, एडी में माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा तो 30 माइनस 16.25 मैं किया तो ये आ जाता है मेरा यहाँ डिस्चार्ज 13.75. ठीक है. अब बी पे कितना डिस्चार्ज आ रहा है मेरा, 16.25 आ रहा है ना. अब बी सी पे कितना है, अगेन द लूप 2 का करेक्शन हमारा माइनस 1.25 है. तो बी सी अगर मेरा कितना था डिस्चार्ज, पहले 10 था और ये प्लस 2.5, तो यहाँ पर 10 प्लस 2.5, तो बी सी के अगर मैं लिखता हूँ लूप 2 में बी सी इज इक्वल टू 10 प्लस 2.5, ये मेरे करेक्शन आया तो क्या हो जाएगा 12.5. यहाँ पर डिस्चार्ज 12.5. अब बीडी में क्या हो जाएगा, एक 16.25 और यहाँ 12.5 है तो 16.25 माइनस 12.5 अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरा डिस्चार्ज यहाँ पर आ जा रहा है ये 3.75 बीडी में कितना आ जा रहा है 3.75. लाइक अब ये दोनों को जब जमा करेंगे आप तो 16.25 ऑटोमेटिकली आएगा. ओके. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ डी जंक्शन पे एक तो बी टू डी आ रहा है 3.75 और ए टू डी आ रहा है 13.75. अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर डी पर आकर, तो 3.75 ऐड अगर मैं करता हूँ ये 13.75, तो ये क्या हो जा रहा है मेरा यहाँ से डी टू सी जाने वाला ये हो जा रहा है 17.5. अब देखिए यहाँ सी 12.5 आ रहा है और 17.5 आ रहा है. अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो मेरा जो डिस्चार्ज है 30 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आउटपुट की जगह 30 है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये 30 आ रहा है. यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेकंड करेक्शन के लिए ये हमारा सही है ना. तो इस तरह सेकंड करेक्शन के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ओके. नाउ आई विल ड्रॉ दिस सो दैट द पाइपलाइन विल बी, सॉरी थोड़ा सा क्लियर ड्राइंग है तो आप समझ लीजिए. नॉट गुड, गुड, गुड. थोड़ा सा मोहब्बत को एंड ए टू बी, सॉरी 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 सॉरी
Similarly, B to D. Then B to C also follow. Yeah. B to okay. So this figure is completed. Now again we have to apply the कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक आपका डेल्टा क्यू की वैल्यू लेस देन 1 नहीं आया, जब तक हमको करेक्शन अप्लाई करते रहना है। यहाँ पर आप देखिए डेल्टा Q1 1.25 है और डेल्टा Q2 लूप 2 का 2.5 है। ये लेस देन 1 वैल्यू है क्या? नहीं है, यानी आपको अगेन आपको करेक्शन अप्लाई करना है। ओके, तो अब मैं लेता हूँ दूसरा टेबल। So loop again you have to column number 1 is loop, column number 2 is the pipe, कौन सा पाइप आप कंसीडर करेंगे लूप में। column number 3 is the pipe का k value, that is coefficient of pipe, and then summation of kq square हमको मालूम करना है, और mod of 2kq summation of 2kq ये भी मालूम करना है, तो इसकी एक एक वैल्यू लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका ये डेल्टा क्यू आपको मालूम करना है, Q1 लूप 1 के लिए, लूप 2 के लिए। तो अब मैं पहले ले लेता हूँ लूप 2, लूप 2 में ले लेता हूँ। तो लूप नहीं सॉरी लूप 1 पहले लेता हूँ, लूप 1, ये लूप 1 है। लूप 1 का पहला पाइप में लेता हूँ, लूप 1 का पहला पाइप है ए बी। ए बी के की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, के की वैल्यू जो आपने पालन किया है वो सेम रहेगी। k is equal to here 1, k is equal to here I think so 2, k is equal to here this b to d is 3, k is equal to here b to c is 2, and k is equal to 1 here d to c, all the k value we know। तो मैं अभी a to b ले रहा हूँ, k वैल्यू 1 है और डिस्चार्ज 16.25 है। और अगर लूप से मैं लेता हूँ तो अगर लूप 1 कंसीडर करता हूँ तो ये डिस्चार्ज क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, है ना। यहाँ पर मैं लेता हूँ पाइप ए भी मैंने कंसीडर किया लूप 1 में, के की वैल्यू है यहाँ पर 1 और डिस्चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव में लिखूंगा 16.25। अब यहाँ पर के क्यू स्क्वायर हमको मालूम करना है, तो 16.25 का स्क्वायर इट इज 264 इंटू के की वैल्यू इज 1, तो दैट इज 264, तो प्लस 264। अब यहाँ पे मालूम करना है 2k क्यू के, क्यू कितना है 16.25, 16.25, k is 1 into 2, so it will be 32.5. So these values are always positive. If you not write sign, that is also not okay. ये हो गया। Now we will consider the b into d, b into d, दूसरा b into d। लूप 1 में b into d आप देखेंगे ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी देखिए आप लूप 1 ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 है dd की और q है प्लस 3.75। अब यहाँ के क्यू स्क्वायर हम मालूम करेंगे, तो q है 3.75 स्क्वायर इंटू के इज 3 इंटू 3, इट इज कमिंग 42.2। This value is again positive 42.2, and here 2kq, 2 into 3 into q is 3.75, coming 22.5, it is positive 22.5. Now the dA, dA, तो लूप 1 में dA का जो पोजीशन है ये d to a, यहाँ पर देखेंगे ये फ्लो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज है, और डिस्चार्ज 13.75 है, तो निगेटिव वैल्यू रहेगा और के की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, और दिस वैल्यू माइनस 13.75। ओके, तो यहाँ वैल्यू अगर मालूम करें 13.75 स्क्वायर इंटू के इज 2, तो इट इज माइनस
378. Why minus term? Because this column number 4 में ये माइनस है, कॉलम नंबर 4 में जो माइनस है वो एज इट इज 5 में लिखना है, तो minus 378.0, and this will be I will write out. So 2 into k is also 2. 2 into 2 is 4 into 13.75. It is coming 55. Coming 55. Okay. Now delta q you can find out. Delta q1 लूप 1 के लिए तो समेशन इनका निकालना पड़ेगा। तो समेशन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस 264 प्लस 3.7 प्लस 42.2 माइनस 378, ये वैल्यू आती है माइनस 71.8। अब अगेन 32.5 plus 22.5, all the terms in 2qk डिटर्मिनेंट में है तो सब टर्म क्या पॉजिटिव आएगा, तो इट इज 110 अगेन। सो 32.5 plus 22.5 is 55 plus 55 is 110. I will write down here minus 71.8 डिवाइडेड बाय 110, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू 1 की, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 71.8 डिवाइडेड बाय 110, इट इज प्लस 0.65, ये पॉजिटिव आ गई। नाउ ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई। अब देखेंगे कि दूसरे लूप में हमारी लेस देन 1 वैल्यू होती है। अगर लेस देन वन वैल्यू दूसरे लूप में हो गई, हम एट्रेशन जो है, ट्रायल जो है, हम रोक सकते हैं। तो ये जो टेबल है, टेबल दिस इज ट्रायल टू टेबल, फाइंड द करेक्शंस। नाउ आई विल टेक द लूप 2। लूप 2, अगर मैं लूप 2 में यहाँ पर, तो लूप 2 में यहाँ पर मैं लूप 2 पहला BD इज कॉमन, मैं BD लेता हूँ। BD में k की वैल्यू 3 है और ये प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस के लिए हमको देखना पड़ेगा कि लूप 2 में काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह है, इस तरह नहीं से ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर BD जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी, है ना, ये बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर लूप 2 में माइनस हो जाएगा, माइनस 3.75, यहाँ पर भी वापस माइनस आएगा, तो माइनस 42.2, और यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा 22.5। समझ में आ गया? इस तरह हमको सॉल्व करना है। अब उसके बाद BD के बाद लूप 2 में, लूप 2 में आपका BC है दूसरा, यहाँ पर अगर हम फिगर देखेंगे BC, अब देखिए BC यहाँ पर अगर लूप 2 से हम देखेंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, और डिस्चार्ज कितना है 12.5 और k की वैल्यू 2 है, यहाँ पर k की वैल्यू BC में मैंने k की वैल्यू 2 लिया, डिस्चार्ज प्लस 12.5, अब उसको मालूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस वैल्यू आ जाएगी, तो 12.5 इंटू 12.5, that is square, into k is 2, it is plus 312.5, plus 312.5, and that is plus 312.5, और यहाँ पर 2k क्यूब, तो 2 into k is 2 is 4 into 12.5, so it is 50, it is plus 50.0. Now one more member pipe is there, C to D in the loop 2, तो loop 2 में D to C आप देखेंगे, तो ये भी आप देखेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज इसका फ्लो है, काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी दिस टर्म वी हैव टू टेक द माइनस, एंड k की वैल्यू 1 है,
तो अभी यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ k की वैल्यू 1 और दिस टर्म इज माइनस, तो ये भी माइनस आएगा, एंड दैट इज 17.5. तो 17.5 का स्क्वायर इंटू k इज 1, इट इज माइनस 306.25, माइनस 306.25. ओके, और ये जो आ गया टू टू इंटू के इज 121, तो 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 17.5, so 2 into 17.5 is 35, it is plus 35 equal to 0. Now again I have to do the summation of this delta kq square and summation of 2kq हमको यहाँ पर करना है. तो minus 42.2 plus 312.5 minus 306.25. साइन अगर आप बराबर लगेंगे तो इट इज कमिंग माइनस 35.95. जितना एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे उतना अच्छा आपका वो आएगा. 1022.5 प्लस 50 प्लस 35 अगर हम ऐड करें तो इट इज कमिंग 107.5. 107.5. अब डेल्टा Q2 हमको मालूम करना है. That is nothing but minus पहले the summation of kq square, ये हम लोग ने मालूम किया, divided by summation of 2kq, ये भी हम लोग ने मालूम किया. Put this value, you can find out this is minus plus, that is 35.95 divided by 107.5. The term will be positive, this minus will be plus, so 35.95 divided by 107.5. So this is also, this value is also less than 1, so 0.33 is the correction factor for loop this second. अगर आपको प्रोसीड करना है तो अगेन यू कैन फाइंड आउट, अप्लाई द करेक्शन एंड लोड. बट हियर नोट दैट our note that this values correction delta q1 and q2 is less than 1. So note first, write down the procedure needs repetition अब तक रिपीट करना है, रिपीटेशन till डेल्टा क्यू वैल्यू शुड बी लेस देन 1. तो यहाँ पर ऑलरेडी डेल्टा क्यू वैल्यू Q2 और Q1 दोनों लेस देन 1 आ गई. ये देखो ये भी लेस देन 1 है एंड दिस इज आल्सो लेस देन. तो आगे आप अगर रिपीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और अगर आप रिपीट करेंगे, मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको चाहिए तो यू कैन रिपीट इट. ओके, नाउ second note is that kq square has same sign as q as per loop selected. आपने जो लूप लिया है उसके ऊपर से अगर जो साइन है वो उसके हिसाब से आपने लिया. तो ये अगर क्लॉकवाइज है फ्लो तो इट इज पॉजिटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज है फ्लो तो ये निगेटिव. ये याद रखना है. तीसरा नोट है कि that 2kq value, summation to 2kq value has no concern with the sign of q or k, with the sign of q.
ओके, तो क्यू की साइन से इसका कुछ संबंध नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू नो दैट क्यू इज नथिंग बट डिस्चार्ज। अब यहाँ डिस्चार्ज की वैल्यू आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ हमारा प्रॉब्लम खलास हो गया। तो डिस्चार्ज फाइंड करना था, तो यहाँ पर डिस्चार्ज आप फाइंड कर सकते हैं करेक्शन अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर डिस्चार्ज मैं लिख देता हूँ यहीं पर, तो आई विल पुट द एरो एंड विल पुट द डिस्चार्ज। ओके, so this discharge in pipe A and pipe B and pipe AB, pipe BC, pipe AD and pipe BD 30 यूनिट है, तो ये भी 30 यूनिट बाहर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर फाइनल डिस्चार्ज लिख देंगे, फाइनल डिस्चार्ज विल बी A, B, C, they are the junction point. D is also. ठीक है, अच्छी बना रहा है, मेरी सी एड है, आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं आपके नोटबुक पे, नो इशू। अब यहाँ पर करेक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो ए बी में यहाँ क्या है, प्लस 0.65 है, तो यहाँ पर प्लस 0.65, पहले कितना था 16 पॉइंट, करेक्शन से पहले क्या था 16.25, 16.25 प्लस 0.65, तो ये हो जाएगा 16.9। यहाँ पर डिस्चार्ज आप लिख सकते हैं 16.9, 16.9 डिस्चार्ज इन ए बी। तो ये 30 माइनस, ये पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस किया, नीचे का अगर लो पॉइंट से हम लेंगे आप देखेंगे ये पॉजिटिव है ना, ये क्लॉकवाइज है इसलिए ऐड किया, ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस होगा, है ना। तो 30 माइनस 16.9 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 13, वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा 13.1। अब वापस से ये 16.9 है, तो BC में अब यहाँ लूप क्यू में हमारा जो यहाँ पर आप देखेंगे BC का जो फ्लो है ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ एडिशन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा, तो यहाँ पर एडिशन अगर होगा तो 0.33 का एडिशन होगा, है ना, 0.33 प्लस 0.33 है ना, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ एडिशन होगा, ये निगेटिव रहती तो माइनस होता। तो पहले हमारा यहाँ पर क्या था 12.5, तो 12.5 प्लस 0.33, तो ये है 12.8, तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 12.8 से, तो यहाँ पर BD में क्या है वही माइनस होगा, तो BD में यहाँ माइनस अगर मैं करता हूँ तो 16.9 माइनस 12.8, तो ये हो जाएगा 4.1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिस्चार्ज 4.1। अब यहाँ से आ रहा है 4.1 और इधर से 13.1, 4.1 प्लस 13.1, तो कितना हो जाएगा डिस्चार्ज, ये हो जाएगा 17.2। अब मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ, अगर दोनों सी पर मिल रहे हैं 17.2 प्लस 12.8, ये कितना हो गया 30। यहाँ पर ये 30 यूनिट हमारा आंसर बराबर आ रहा है, बिकॉज 30 ये इनपुट भी बराबर है और ये आउटपुट। ओके, तो likewise you have to suggest the flow in the pipe network or analyze the flow in the pipe network by using the Hardy cross method. So this is second trial, और कुछ एक आध ट्रायल करेंगे तो that will be clear, maybe it will be 17, it will be 13, okay, so like this maybe
the value will come round up. Okay, this is the your example uh, I solved by using the Hardy cross method. This is the example using the Hardy cross method. Okay, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? अभी जो सर हमारा हाँ बोलिए। डेल्टा क्यू की वैल्यू लेस देन 1 ही क्यों आनी चाहिए? डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ गई तो आपको हाइड्रेशन रोक देना है। आप अगर और सॉल्व करते जाएंगे तो आपका डेल्टा क्यू इज एरर, है ना? तो हमारा एजम्पशन में एरर है। डिस्चार्ज पहले हमने जो अज्यूम किया था 15 और 15 वो सही नहीं था, इसका मीनिंग ये है। तो फिर हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो 16.25 आया, फिर और करेक्शन हम लोग ने निकाला तो 16 पॉइंट हम अदर वैल्यू आया। ये वापस से मैं बताता हूँ आपको। तो डेल्टा क्यू इज नथिंग बट अ करेक्शन। ये डेल्टा क्यू जो है आप टेबल में जो निकाल रहे हो, दिस इज द करेक्शन, है ना? ये 1.25 है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो हमने क्या किया, वापस से और एड्रेशन किया और दूसरा ट्रायल पे लिया और उसमें और करेक्शन कम हो गया। देखिए 1.25 पहले था, यहाँ पर 0.65 है। और अगर आप करेंगे तो 0.65 का और कम हो जाएगा और ऐसे ऐसे करते करते करेक्शन आपका 0 हो जाएगा, एरर आपका 0 हो जाएगा। करेक्शन या एरर जो भी बोलिए आप, समझ में आया? फिर पाइप फ्लो में आपके जो फ्लो है, कौन से पाइप में से कितना जा रहा है वो एग्जैक्ट आप मालूम कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन बाय हार्ड क्रॉस मेथड यू कैन कम क्लोज वेल। समझ में आया? हाँ सर। सर इनपुट और आउटपुट के वैल्यू सेम क्यों आ रहा है? उसमें लॉसेस ये भी तो होते हैं ना। दैट इज द अजम्पशन ना, बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ये ठीक है तो सर। एकदम पहला अजम्पशन मैंने आपको बताया ना। हार्डी क्रॉस मेथड आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये सब अजम्पशन पहले ही बताया आपको थ्योरी में, दैट इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। क्रॉस मेथड, ये देखिए पहला अजम्पशन, इनफ्लो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। अगर 100 इनफ्लो है तो आउटफ्लो भी 100 है। तो ये पहले ही अजम्पशन। एनीथिंग मोर? अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर अगर डिफिकल्टी रहेगी तो फिर मैं उसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हार्डी क्रॉस मेथड आपके प्रैक्टिकल में असाइनमेंट में कंपलसरी है। तो वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो कंपलसरी है वो मैं दे रहा हूँ, उसमें आपका थ्योरी का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमारा एक असाइनमेंट जो कंपलसरी है वो पूरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल गिव यू द असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट आप लिख लीजिए नोटबुक पर और फिर उसको पूरा करना है। ओके, तो आई विल शेयर दैट असाइनमेंट, प्लीज वेट। ओके, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर असाइनमेंट नंबर 2 आपको लिखना है। आप बोलिए कौन बोल रहा है? सर अगर लूप 1 में लेस देन 1 आ गया और लूप 2 में नहीं आया तो फिर एक और ट्रायल लेंगे।
हाँ, जो शूट दोनों में आपका जितना लूप है, 2 है 3 है, हर लूप में आपका लेस देन 1 होना चाहिए ना, ट्रायल तो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका लेस देन 1। एक वो उन्होंने ये किया कि लेस देन 1 तक ये आप 0 तक भी कर सकते हैं, ट्रायल लेते रहिए इटरेशन। इसके लिए तो वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, इटरेशन करते करते एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ जाती है, सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो, और वो आसानी से सॉल्व करता है। तो ये असाइनमेंट आपको मैनुअल सॉल्व करके आपको कंप्यूटर जनरेटेड कैलकुलेशन भी करके उसको दिखाना है। एक्सेल शीट में आपको अगर आता है एक्सेल शीट, और मैटलैब आता तो मैटलैब, ये कोई भी सॉफ्टवेयर आपको आता है तो वो सॉफ्टवेयर यूज करते थे, जरूरी नहीं है कि मैटलैब और एक्सेल शीट ही चाहिए। जो सॉफ्टवेयर आपको आता है उसमें आप इसका इटरेशन कर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देन प्रिंट आउट दिस दैट आल्सो। ओके, मैनुअल कैलकुलेशन तो करना ही है, और कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करके ये कैलकुलेशन उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? असाइनमेंट दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर। राइट डाउन दिस असाइनमेंट नंबर। हमारे हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में जो रहेगा असाइनमेंट नंबर 1 रहेगा, तो नो इशू। अगर 2 भी आपने नाम दिया तो कोई इशू नहीं है। टाइटल रहेगा एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड। एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड।